Good evening, everybody. A warm welcome to all of you. Today, we are going to conduct a session on arthritis, a holistic approach. We are actually commemorating the Arthritis Day, which was on the 10th of October. Uh, Today, we have with us Dr. Girish Rathod and Dr. Priyanka Jadhav Mete, who would be conducting this session. I welcome both of you, doctors. Before we start the session, I would introduce our eminent speakers. Dr. Girish Rathod, he is one of our trustees as well as the founder members. Welcome, sir. He has done his MS Orthopedics from Nair Hospital, and he has started his private practice since 1992. And he has been associated with us for a very long time, and he has been instrumental in establishing different departments of orthopedics like the joint replacement, spine, pediatric orthopedics, arthroscopy, and the trauma unit. He has also overseen the high quality of professional standards in clinical as well as operative faculty. He has been successful in establishing the high level of sterility and latest state of art instrument and quality control in the operation theater. Uh, he has also trained various doctors. He has trained our OT staff, and today what we have a full-fledged orthopedic unit is all thanks to Dr. Orthopedic surgeons, and he is involved mainly in joint replacement and trauma, and he is spearheading a new field of preventive orthopedic to help and assist the society at large in preventing the major orthopedic disease like osteoarthritis, spine problems, and bone disease. We also have, and that is a little short introduction of Dr. Rathod. Time constraint, I would be restricting to this. I also welcome Dr. Priyanka Jadhav Mete. She is completed her BAMS and she's completed her MD in Panchakarma. She also holds a diploma in yoga and Ayurveda, and she's a Ayurveda Vachaspati. She is an alumnus of the prestigious Tilak Ayurveda College, Pune, and she has trained under renowned Dr. Dilip Gadgil of Kolatkar Parampara Pune. Sorry. She brings with her experience of more than 7 years as a consultant, and also has worked with Kolkata Military Hospital. She's specialized in yoga, panchakarma therapy, and prescribes not only medications but also lifestyle modifications. She has published a research paper on arthritis in an index Ayurveda journal. I now hand over to Dr. Priyanka and Dr. Rathod sir. Over to you all to start the session. Thank you so much. Uh, Good evening, all. Welcome, Dr. Girish, sir. So today we are here to celebrate World Arthritis Day, which was conducted on 12th of October. But this whole month we celebrate it as a World Arthritis Day for the awareness of arthritis and the musculoskeletal diseases. Shall I share my screen? Yes. Welcome, sir. We will start here our awareness about the World Arthritis Day. So, I would like to ask you कि ये जो Arthritis Day का awareness है, why we need to observe this day? First of all, I am grateful to Bhaktivedanta Hospital and Department of Branding and Promotion for inviting me for this awareness of Arthritis Day and holistic approach to arthritis. जैसे आपने कहा कि ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट क्यों होता है, हर साल में कोई ना कोई दिन हम एक स्पेसिफिक चीज को देते हैं इस वजह से कि उस पर्टिकुलर जो सेलिब्रेशन होता है उस दिन के लिए, तो उस चीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए।
मॉडर्न लाइफस्टाइल आज इतने बड़े जोर से आगे बढ़ रही है अलग अलग प्रकार के ह्यूमैनिटी के कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए। तो शरीर के लिए ये जो जॉइंट्स जो है और बोन्स जो है उसकी और अवेयरनेस ये बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। सारे विश्व में हम देखते हैं कि जॉइंट्स के दर्द जो है वो दिन बर दिन बड़ी जोरी से बढ़ रहे हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ये कम से कम 10 साल पहले का रिकॉर्ड है, तो $5 बिलियन इंडस्ट्री हो चुका है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर जॉइंट्स, and this is, I think, a humble attempt. This talk show is to make people aware about how we can approach our joints and bones holistically. Yes, sir. Thank you, sir. So here we are to share our knowledge, and the knowledge which is shared by it is shared in the so much knowledge is there in the Ayurveda text and also in the allopathy. So the holistic approach we have brought here for all of you. So before going further, we will see what is arthritis, what happens in arthritis. So, as you know, Priyanka, Dr. Priyanka, the arthritis is an early stage. It is an inflammation of the joint, in which the joint, it starts with a early pain, then it causes swelling, redness, warmth, and then it advanced stages, it causes deformity, shape change होने लगता है, और बाद में जो मूवमेंट जो होती है, जॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने जाता है। जो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन का जो ग्रेडेशन है वो एडवांस स्टेज पर बता सकते हैं हम। सर, तो हमें आयुर्वेद में भी इसे हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे संधिवात है, आमवात है, गठियावात है, ऐसे। तो ये जो संधिवात है या आर्थराइटिस है, इसे जानने से पहले हमें संधि या जॉइंट क्या होता है वो जानने की जरूरत है। तो एक संधि में और जॉइंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जॉइंट्स के लिए अगर समझना है तो बेसिकली जॉइंट ये दो हड्डियों का संगम होता है। जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है, ऊपर का घुटने का ऊपर का हड्डी, नीचे का जो है घुटने का नीचे का हड्डी। ऊपर के हड्डी को हम फीमर बोलते हैं, नीचे को हम टिबिया बोलते हैं। और जॉइंट्स में दो अलग अलग हड्डियां होती है हलन चलन के वजह से किए मुख्य कारण से। तो उसको पकड़ने के लिए साइड से लिगामेंट्स होते हैं, अंदर से साइड के लिगामेंट उसको साइड की ओर नहीं जाने देते हैं, अंदर के लिगामेंट आगे पीछे नहीं जाने देते हैं। जॉइंट के बीच में गद्दी होती है, कुशन होता है, या तो मेनिस्कस घुटने में हम बोलते हैं वो होता है। और सबसे महत्व का जो होता है वो जॉइंट सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस। जॉइंट का जो सरफेस जो एक दूसरे पर रब होता है वो कांच से भी ज्यादा स्मूथ होता है। और फिर उसका ब्लड सप्लाई, ये सारी चीजें जॉइंट के लिए समझना, एक जॉइंट को, एक सांधे को समझने के लिए ये सारे फैक्टर बहुत ही महत्व के होते हैं। यस सर। तो जैसे संधि हमने देखा है कि संधि या जोड़ यानी दो चीजें जहाँ पे एकत्रित आती है और जुड़ी हुई रहती है। तो आयुर्वेद शास्त्र में जैसे बताया गया है कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं, और जैसे रस, रक्त आदि 7 धातु हैं। ये सारे जो घटक है वो शरीर निर्मिति में महत्वपूर्ण है। तो एक जॉइंट में या संधि में जैसे हमने ये बोन्स देखे हैं, यानी उसे हम अस्थि धातु कहते हैं। तो सबसे महत्व का है अस्थि धातु। सेकेंड इज द मसल्स। द मसल्स यानी ये है मांसपेशी, और जैसे ये लिगामेंट्स एंड मेनिस्कस है, हम उससे स्नायु बोलते हैं। और जो दो हड्डियों को एक जगह बांध के रखता है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड है, वो है एक श्लेषक कफ। जो कफ दो संधियों में जहाँ पे भी दो हड्डी एकत्रित आती है वहां पे रह के उनमें लुब्रिकेशन मेंटेन करता है। तो इसे हम आयुर्वेद शास्त्र की तरफ से इसे हम जोड़ को या संधि को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेरी नाइस, तो थैंक यू। यस सर, अगर ये जो हमने अभी आर्थराइटिस देखा है तो ये सामान्य लक्षण इसमें देखे हैं, और इसमें क्या क्या होता है?
साधारणतः जॉइंट पेन्स जो होता है वो उम्र के हिसाब से जो आर्थराइटिस होता है वो जिस जिस सांधों में वजन आता है, जैसे कि घुटना है, हिप जॉइंट है, कमर है, उसमें होता है। लेकिन संधिवात जो खून के वजह से जो मल्टीपल जॉइंट्स पेन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के शरीर के सांधे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो खास करके घुटने का और कमर हिप जॉइंट का अगर आर्थराइटिस होता है तो उसमें सिम्टम्स होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस। हाँ, लेकिन मल्टीपल जॉइंट्स में जो होता है, जब रूमेटिज्म होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स में दर्द होता है। कभी एक में होता है, कभी दूसरे में होता है। फ्लीटिंग जॉइंट पेन, यानी एक जॉइंट पेन होता है, बाद में दूसरे में जॉइंट पेन जाता है, फिर तीसरे में जाता है। और ये सारे जॉइंट पेन के वजह से पेशेंट जो होता है वो इमोशनली काफ़ी पीड़ित रहता है, खास करके अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। और फिर आगे जाके पेशेंट के जो फंक्शंस जो होते हैं, रोज बरोज की जो एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी करने में पेशेंट के लिए जो है मुश्किलियाँ धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि सारे जो जॉइंट्स जो होते हैं और जो भी जॉइंट इन्वॉल्व है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं और उसमें डिजीज प्रोसेस जो होता है। तो इसमें और कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सुबह में जकड़न ज़्यादा होती है। सार्वदेहिक कुछ लक्षण हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, एक अलग से थकान रहती है, लॉस ऑफ टेस्ट यानी अरुचि उत्पन्न होती है, बिकॉज टंग इज द मिरर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो अगर आपके जीवा में ही रस उत्पत्ति नहीं होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं पे हैम्पर हो रहा है। और हेवीनेस रहता है बॉडी में, पाचन आपका ठीक से नहीं होता है। सार्वदेहिक तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, फीवरिश फीलिंग रहती है। और लोकलाइज जैसे जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, सूजन रहती है। तो कभी कभी सर इसमें दर्द इतना बढ़ जाता है, जैसे हम रोमाटिज्म में देख सकते हैं, हम जिसे आमवात कहते हैं, तो उसमें दर्द और जो बहुत बढ़ता है तो उसे हम वृश्चिक दंशवत वेदना कहते हैं, जिसमें बिच्छू काटने के बाद जितनी पीड़ा होती है उससे भी ज्यादा पीड़ा होती है। तो इतना जो दर्द होता है ये आर्थराइटिस में, लेकिन ये आर्थराइटिस होने के क्या कारण हो सकते हैं? डॉक्टर प्रियंका, एलोपैथी में जो हमारा जो विज्ञान जो हमें पढ़ाता है, जिस प्रकार से इस स्लाइड में आप बता रहे हैं, हमारा ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है आर्थराइटिस के बारे में वह लाइफस्टाइल के ऊपर आधारित है। शायद आयुर्वेद में आप ज़्यादा लाइट डाल सकेंगे कि डाइट, माइंड एंड बॉडी के ऊपर हम अब थोड़ा समझने की हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन लाइफस्टाइल के मुताबिक अगर कहा जाए तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा एक्टिविटीज़ कम होना, इम्प्रॉपर बैठना ऑफिस में, इम्प्रॉपर रोज बरोज की एक्टिविटी करना, तो लाइफस्टाइल बहुत महत्व का एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो उसी के वजह से शरीर में स्थूलता आ जाना, जॉइंट्स का अकड़पन हो जाना। एक सादा चीज मैं बताता हूँ कि ऑफिस में हम कई बार आजकल हम देखते हैं कि लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटा चेयर और टेबल पे बैठते रहते हैं। ड्राइव 2-2 घंटा जाते समय, 2 घंटा आते समय ड्राइव करते हैं। तो घुटना जो होता है वो कंटिन्यूस 12 से 15 घंटा 90 डिग्री पर जाम होके रहता है। और ऐसे स्थिति में घुटनों का आर्थराइटिस बहुत बढ़ जाता है। जापान में रिसर्च किया गया है, उसमें उन लोग ने दिखाया है कि टेबल और चेयर को जमीन से कम 4 फुट या 3 फुट का ऊंचाई बढ़ा दिया है। और फिर देखा गया, रिसर्च में बताया गया कि क्योंकि चेयर पे जो व्यक्ति बैठता था उसके पैर हमेशा हवा में लटकते रहते थे, उसके वजह से घुटनों का मूवमेंट रहता था। तो सडनली उस रिसर्च में देखा गया कि जैसे घुटनों की मूवमेंट चेयर की ऊंचाई बढ़ाने से बढ़ गई, तो ऐसे पेशेंट्स में घुटनों का दर्द और लेटर ऑन आर्थराइटिस कम हो गया। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से लैक ऑफ एक्सरसाइज, काफ़ी शरीर का स्थूलपना और इम्प्रॉपर हैबिट्स, उससे जो है वो आर्थराइटिस जो है, खास करके वेट बेयरिंग नी जॉइंट है, स्पाइन है, हिप जो है, नेक है, उसके अंदर पोस्चर के वजह से जो है वो आर्थराइटिस बढ़ जाता है। मे बी आप थोड़ा सा डाइट के ऊपर आप थोड़ा
प्रकाश डाल सकते हैं, किस प्रकार से आयुर्वेद में आहार और आर्थराइटिस का संबंध क्या है, आप थोड़ा सा बता सकेंगे डॉक्टर? यस सर, थैंक यू सर। जैसे आयुर्वेद में इसे हम कॉजेटिव फैक्टर्स को हेतु सेवन कहते हैं। अगर कोई भी व्याधि डिसीज हमें प्रिवेंट करना है तो उसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे पैदा करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसे प्रिवेंट कर पाते हैं। तो इसे हम 3 घटकों में विभाजित किया है, जैसे आहार, विहार और मानस, यानी डाइटरी फैक्टर्स, आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स एंड माइंड एंड बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स। तो हम इसे देखते हैं। जैसे आहार, आहार क्या है? तो अन्न, जो हम अन्न खाते हैं, वो हमारा जो आहार है वो हमारे शरीर का पोषण करता है, और उतना ही वो हमारे मन का भी पोषण करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप जो खाते हैं उस तरह से आपकी जो शरीर निर्मित होती जाती है, आपके अलग अलग धातु निर्मित होती है। लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग है, पैलियो डाइट है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, और ये सारे डाइट करके लोगों को बहुत जल्दी एक उनका वजन घटाना होता है, या फिर अलग अलग चीजें होती है, लेकिन ये बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे क्रैश डाइट्स में अगर आप जाओगे तो आपके शरीर में, शरीर के जो बेसिक धातु है, अस्थि है, मज्जा है, वो बहुत जल्दी से उसमें डिप्लीशन आ जाता है। सेकेंड फैक्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार यानी अपोजिट फूड, यानी इनकम्पैटिबल फूड, जिन आहार घटकों का संयोग नहीं करना चाहिए, अगर वो आप संयोग करके एकत्रित करके खाते हैं तो उसके अ, अच्छे इफेक्ट शरीर पे नहीं दिखते, उसके बुरे इफेक्ट दिखते हैं। यानी जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आजकल लोग गरम गरम गुलाब जामुन का आइसक्रीम डाल के खाते हैं, ये विरुद्ध आहार है। ऑनलाइन रेसिपीज जो आप देखने के मिलते हैं उसमें भी आजकल किसी भी चीज में कुछ भी मिलाते हैं। तो ये विरुद्ध आहार जो है शरीर में टॉक्सिन्स का निर्मित करता है, उसे हम आम कहते हैं। तो ये आहार सब रोगों का मूल कारण है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। So it is rightly said that think before you eat, because it is of no use after no use of thinking after you eat. तो पहले ही हमें अपना चॉइस कर लेना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर तो सर प्रियंका, ये, एक सॉरी हाँ, सॉरी यस सर, एक डाइट के ऊपर एक मुझे कहना था। आजकल ये जो हम रेडीमेड फूड जो होता है, पैक्ड फूड है, कंटेनर्स में जो ड्रिंक्स जो होते हैं, उसका एंड एलोपैथी का डेफिनेटली हमने रिसर्च किया है और बताता है कि शरीर के लिए वो हेल्दी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्न फूड हैबिट्स जो है, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, बहुत सारे चीज़ें, टेस्ट, कलर और स्वाद, अलग अलग चीज़ों के ऐड करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए डाली जाती है, तो उसके मुताबिक आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है? हाँ यस सर। तो इसमें जो ये सारी चीजें होती है, जैसे आप बोल रहे थे प्रिजर्वेटिव्स है, जो बहुत सारे कलर्स एंड अदर फैक्टर्स है, ये सब चीजें जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही गंदे तरीके से अफेक्ट करती है। जैसे शरीर का सबसे मूलभूत जो संस्था है वो है पाचन संस्था, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें जो हम अग्नि बोलते हैं वो है जाठर अग्नि, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका अग्नि अच्छा है तो आप सारे चीजों का पाचन अच्छे से कर सकते हो और सारे रोगों से दूर रह सकते हैं। लेकिन ये सब जो आजकल के मॉडर्न फूड है, ये सब खाने से आपका अग्नि सबसे पहले हैम्पर होता है, कुछ हम अग्नि मांद्य कहते हैं। एंड रोगा सर्वेपि मंदेग्नो, यानी सर्व रोगों का कारण है मंद अग्नि। तो इसीलिए आपको अपना अग्नि बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, इसका केयर करना चाहिए। तो अग्नि का अगर आप केयर करोगे तो बाकी सारी चीजें दूर रहती हैं। तो ये सारे फूड हैबिट्स अगर हम अवॉइड करते हैं तो अपना अग्नि अच्छा रहता है। तो फ्रेश फूड और जो ताज़ा है और जो लोकल है वो अगर हम खाएंगे तो अपना अग्नि भी अच्छा रहता है। थैंक यू। तो सर ये हम आहार के बारे में हमने देख लिया, तो आपके हिसाब से आजकल का जो मॉडर्न एक्सरसाइज है तो उसका अपने जोड़ों पे और जॉइंट्स पे क्या असर होता है? डॉक्टर प्रियंका, जैसे प्रैक्टिस में देखा जाता है, मराठी में एक कहावत है, अति तिथे माती। जहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ होता है वहाँ पर सफलता नहीं होती है, वहाँ मट्टी ही मिलती है। तो हम देखते हैं कि जनमानस में एक ऐसी विचारधारा रहती है
कि बहुत सारा स्थूलता, बहुत सारा मेद शरीर पे हम जमा कर लेते हैं और फिर अचानक हम साल भर के लिए जिम में हम पैसा भर देते हैं। साल भर के लिए हम कोई ऐसी एक्सरसाइजेस में हम पैसा दे देते हैं और उसमें भी बाद में हम अति प्रयास कर लेते हैं। कई बार मैं देखता हूँ ऐसे कितने सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है, वो ऐसी सडन एक्सरसाइज करने जाते हैं जिसके वजह से घुटनों में, एंकल में, कमर में, गर्दन में कई बार सीरियस इंजरी के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो ये एक्टिविटी बुरी नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेस जो है उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सपर्टाइज पाने के बाद में ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए। सडनली हम कहेंगे कि हम एवरेस्ट पे जाते हैं और हमने फिजिकल ट्रेनिंग भी नहीं किया है तो शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो इसी प्रकार से इस प्रकार की जो अलग अलग जिम्नेशियम की एक्टिविटी है, योगा की, ये सारी चीजें उसकी स्थिति पर, उसकी जगह पर अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को ट्रेन करना चाहिए और ट्रेन होके ही फिर बाद में धीरे धीरे आप जाएंगे जिम्नेशियम में और पहले ही दिन आप 10 किलो का ऊपर से ज्यादा वजन आप उठाएंगे और अति एक्सरसाइज करेंगे दूसरों को देखकर, तो बाद में आपका शरीर उसमें आपके सामने जो है वो अलग रिएक्शन डेफिनेटली धीरे धीरे। मैं हमेशा सजेस्ट करना को पहले वॉकिंग शुरू करिए, ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करिए, डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, बाद में शॉर्ट जॉगिंग शुरू करिए। इस प्रकार के कोई भी प्रकार की आपकी जो एक्सरसाइज जो है उसमें ग्रेजुअली आपको उसमें जो है समय और उसमें बढ़ाना चाहिए ताकि शरीर उस चीज को, उस एक्टिविटी को ट्यून होना चाहिए। यस सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है। जैसे हमने विरुद्ध आहार देखा था, उसी तरह से विरुद्ध चेष्टा भी बताई गई है। जैसे हम उसे कह सकते हैं कि उठपटांग हरकतें। जैसे आजकल लोग बहुत ही हेवी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेके जिम जाते हैं और जिम में भी अगर गलत तरीके से आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं और कोई भी दूसरी इधर अदर एक्टिविटीज करते हैं तो आपके जॉइंट्स को और स्पेशली लिगामेंट्स को बहुत हानि पहुंचाती है। अगर वो अच्छे से, आपने जैसे बताया कि अच्छे से सीख के उसका प्रैक्टिस करके करेंगे तो वो हानि नहीं पहुंचाएगी। तो जैसे आजकल की साइकिलिंग भी है तो वो बहुत ही बेंड होके करते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड और जो अपने अस्थि धातु है उसमें हानि पहुंचा सकती है। और इसमें और एक चीज है जिसे हम कह सकते हैं कि सप्रेशन ऑफ द नेचुरल अर्जेस, जो हमारे देश में बहुत कॉमन दिखा जाता है, क्योंकि जैसे मल वेग है, मूत्र वेग है, इनको रोक के रखना। अगर आप इनको रोक के रखेंगे जो कुछ मल मार्ग है, मल है, वो बाहर विसर्जित होना चाहिए, वो नहीं होता है और वो शरीर में फिर उसका कुछ अंश संचित होने लगता है और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के व्याधि निर्मित होती है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जोड़ों में यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट होता है, तो और बोन वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स ग्रोथ होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो शरीर को भी और स्पेशली जॉइंट्स को भी अफेक्ट करते हैं। थैंक यू। जैसे व्यायाम और योगा एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, वैसे ही लाइफस्टाइल मींस व्हाट इज द रोल ऑफ लाइफस्टाइल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ जॉइंट्स? इस प्रकार से अगर आज जो आपने जो स्लाइड पे दिखाया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक लाइफस्टाइल, ये अब मॉडर्न साइंस इस प्रकार को लाइफस्टाइल को और शरीर की बीमारियों को अब कनेक्ट करने की डेफिनेटली उन्होंने समझ पाए हैं और हम अभी प्रोपोगेट भी करते हैं कि सात्विक जो लाइफस्टाइल है जिसमें जल्दी उठ जाना, सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना, फ्रेश घर में बनाया हुआ खाना पीना, अच्छी तरह से शरीर को हाइड्रेशन, पानी पी के रखना और जहाँ तक हो सके अपने खुद के ही फायदे के लिए ना, लेकिन समाज के लिए भी फायदे के लिए हम जीने का कोशिश करें, यह एक सात्विक लाइफस्टाइल हो जाती है। राजसिक लाइफस्टाइल में डॉक्टर प्रियंका जो देखे जिसमें बहुत ही सारा पैशन होता है, पैशन जरूरी है लाइफ में, उसकी ना नहीं है,
लेकिन जो वह पैशन जो होता है, राजसिकता जो है, वो अपने ही फायदे के लिए सिर्फ देखा जाए वहां तक ठीक है, लेकिन जब हम राजसिकता में हम दूसरे के गैर फायदे को, दूसरे का फायदा उठाकर अपने फायदे की और जब हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारे कितने घंटे हम काम कर रहे हैं, कितनी रातें हम जग रहे हैं, काम करते समय हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो हम नहीं देखते हैं। घर वाले, फैमिली मेंबर्स के लिए क्या उसमें उनके ऊपर स्थिति, जो कनेक्टेड लोगों का क्या स्थान है, ये जब हम ध्यान नहीं रखते हैं तो यह एक राजसिक लाइफस्टाइल हो जाती है। और जो तामसिक लाइफस्टाइल जो होती है डॉक्टर प्रियंका, जिसमें दूसरे का तो भला छोड़ो, हाँ, दूसरे का तो गैर फायदा छोड़ो, लेकिन अपना भी जो फायदा जो है, जो नहीं देखता है, जो अपने शरीर के ऊपर खुद ही जो है वो घाव दिन भर, महीनों, सालों साल तक करते रहता है, लेट तक समय से सोना नहीं, समय पे खाना नहीं, जो भी हाथ में आ जाए वो खाते रहता है, शरीर को पूरा मेद से भर लेना, और फिर घंटों तक एक ही जगह पर रहकर, हाँ, एक ही चीज में, जैसे कंप्यूटर है, टेलीविजन है, मोबाइल है, उसके ऊपर जुड़े रहना, जिसमें अपना मन का कोई ख्याल नहीं रखना, शरीर का कोई ख्याल रखना, हाँ, और अलग अलग बीमारियों को शरीर पर आके जो है आप उन्हें आने के लिए निमंत्रण देते हैं। इस प्रकार की जो तामसिक जो लाइफस्टाइल जो है, जिसमें खुद को भी नुकसान होता है और दूसरे को भी उसमें हम जो है वो भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तीनों प्रकार की जो लाइफस्टाइल जो है, जिसमें आज का जो मॉडर्न जो समाज जो है, जिसमें भौतिकतावाद की ओर हम जाने की कोशिश में हम सात्विकता की ओर से हट रहे हैं और राजसिकता और तामसिकता की ओर हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसी के वजह से खास प्रकार के जॉइंट की अगर बात करें तो जॉइंट के लिए, शरीर के बोन्स के लिए सात्विक तरह से जीना ये बहुत ही ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ डॉक्टर प्रियंका, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल की ओर से हम गए कम से कम 15 से 17 साल से, हर साल हम पंढरपुर में आई कैंप करते हैं, जिसमें 1 महीने तक हमारा कैंप रहता है, और हम कम से कम 40 से 45 हजार पेशेंट को हम हर साल देखते हैं। तो एक एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एक हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि सारे ये जो पेशेंट होते हैं उसमें से एवरेज पेशेंट 55-60 साल से ऊपर होता है, ये जो इस पंढरपुर की यात्रा में आते हैं। 30-35 किलोमीटर कम से कम वो चलकर आते होते हैं, कम से कम 20-25 दिन वे चले होते हैं, और मैं देखता हूँ कि उनके शरीर में कहीं पर भी मेदस्व नहीं होता है, मेद नहीं होता है, स्थूलता नहीं रहती है, शरीर में बीमारियां बहुत कम रहती हैं, घुटनों के खास करके जो दर्द है वो बहुत कम, अगर वो आते हैं तो खास करके थकान है, जुलाब है, बॉडी है कि बुखार है, उसके वजह से आते हैं। तो क्योंकि ये पूरे दिन अपना काम निसर्ग के साथ खुले में, खेत में, सूरज के नीचे एक्टिविटी भरपूर, इस प्रकार से एक्टिविटी जो करते रहते हैं, उनके अंदर शरीर के सात्विकता जीने की वजह से उनके अंदर जॉइंट की ही नहीं लेकिन बाकी की भी जो सारी बीमारियां वो कम रहती हैं। यह एक ऑब्जर्वेशन है कि कैसे सात्विक जो जीना जो है उससे हम सिर्फ आर्थराइटिस ही नहीं लेकिन शरीर की कई सारी, लगभग सारी बीमारियों से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्व का ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए कि कितना हमें एक्टिव रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कितना चलना, कितना सारा हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या, किस दिशा में हम हमारे शरीर की ओर, बाकी की मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, हमारे शरीर की ओर हम किस दिशा में समाज जा रहे हैं, इसे देखना और समझना बहुत जरूरी है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि नींद के बारे में, अगर मैं देखता हूँ पेशेंट्स ज्यादा, आजकल ये हैबिट हो गया है 2-2, 3-3 बजे तक जागना, 10-10, 12-12 बजे तक उठना, और ये हमारे मॉडर्न साइंस में उतना सारा अभी तक लाइट नहीं हम डाल पाए हैं। मैं भी, आप आयुर्वेद की ओर से कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से जोड़ों के ऊपर खास करके लेट तक जागना, उससे क्या आड़ असर, खराब असर हो सकती है? यस सर, थैंक यू सर। आपने जो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, ये बहुत ही विशेष है और महत्वपूर्ण है।
तो निद्रा भी ये सात्विक लाइफस्टाइल का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जल्दी सोना ये शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे स्लीप, निद्रा यानी स्लीप, इट इज अ इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ अ गुड हेल्थ। हम इसीलिए आयुर्वेद में उसे त्रयोपस्तंभ, 3 जो उपस्तंभ है शरीर के, उसमें गिना जाता है। इसमें भी निद्रा के अलग अलग प्रकार है, लेकिन जो रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा है, जो रात के स्वभाव से ही आ जाती है। रात्रि में जो तमोगुण होता है उसकी वजह से जो हमें स्वाभाविक नेचुरल निद्रा आती है, वो शरीर के लिए भूतधात्री होती है। भूतधात्री यानी जैसे अ मदर्स नर्चर्स हर चाइल्ड, इन द सेम वे दिस गुड नाइट स्लीप नर्चर्स आवर बॉडी वेरी वेल। तो इस हिसाब से अगर जल्दी रात को सोते हैं, यानी 9 से 10 बजे तक, तो आपके शरीर में जो दिन भर में संचित टॉक्सिन्स है, वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आजकल लोग शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रही है। डिटॉक्सिफिकेशन लिक्विड है, डिटॉक्सिफिकेशन डाइट है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप समय पे सोते हैं तो आपके शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन एवरी डे होता है। उसके बाद शरीर में शरीर का जो मसल्स है, जो जॉइंट्स है, उसका रिलैक्सेशन होता है, रिजुविनेशन होता है, न्यू बॉडी सेल्स फॉर्मेशन होता है। क्योंकि रात्रि में जो निद्रा आती है उसके बाद शरीर जो है एनाबॉलिक स्टेज में जाता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज चलती हैं, तो नई पेशी का निर्माण होना ये रात्रि में होता है। तो जैसे दिनचर्या महत्वपूर्ण है, वैसे ही रात्रिचर्या भी महत्वपूर्ण है। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हमारी इम्यूनिटी है, प्रतिकार क्षमता, वो है अच्छी नींद के बाद ही बिल्डअप होती है। तो आज हम कोरोना के ये परिस्थिति में इम्यूनिटी की बहुत बातें सुन रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी इज नॉट अ वन डे टास्क। तो जो सालों साल आप जो आपका हेल्थ मेंटेन करते हैं, उसके बाद वो इम्यूनिटी बनती है। तो इसलिए एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर उसमें मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आजकल लोग बहुत लेट तक जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो ये जो दिन में सोना है वो बहुत ही घातक है, जिसे हम दिवा स्वाप बोलते हैं। तो दिन में सोने से पित्त और कफ दोनों भी बढ़ते हैं, जो और हमारे शरीर में जो माइक्रो चैनल्स हैं, पूरा बॉडी जो है बहुत ही एकदम थिन सूक्ष्म माइक्रो चैनल से बना हुआ है। ये माइक्रो चैनल्स पूरा ब्लॉक हो जाते हैं और शरीर को पोषण नहीं मिल पाता। और रात में जागने से पित्त और वात दोनों भी बढ़ता है, और अगर वात बढ़ता है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स टू योर जॉइंट, और फिर जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब शुरू हो जाता है। थैंक यू। तो सर आप इसमें नींद के बारे में और अपनी जो लाइफस्टाइल है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो एक पार्ट बना है वो है गैजेट्स। अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है। तो आजकल का ये जो गैजेट एडिक्शन चल रहा है फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्ट, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि हम इसे कैसे दूर रहें? हर ओपीडी में हर बच्चा जो आता है, माँ बाप का ये बहुत कॉमन कंप्लेन रहा होता है कि सर ये मोबाइल को छोड़ता ही नहीं या कंप्यूटर छोड़ता ही नहीं। Unfortunately, this is a price, a heavy price, which we are paying for our next generation to become a completely addict. एक मेरा बच्चा आया था पेशेंट, और उसका मैंने पूछा बेटा आपका फेवरेट खेल कौन सा है, और बच्चे का जवाब था सर मेरा आपका फेवरेट गेम कौन सा है। मैंने अभी खेल का मतलब इंग्लिश मीडियम का था बच्चा, विच इज़ योर फेवरेट गेम। तो उसने मुझे कहा सर माय फेवरेट गेम इज गेम ऑफ थॉर्न्स। तो मुझे तो पहले समझने के लिए देर लगा, फिर मुझे ख्याल में आया कि ये तो एक कंप्यूटर गेम है। क्रिकेट, फुटबॉल, हाँ हम जब बचपन में थे, मैं बोलता हूँ आज भी मैं बोलता हूँ कि कितना एक बचपन में क्रिकेट, फुटबॉल, लगोरी, भौरा, गोटी, बैडमिंटन, हर सीजन की हमारे लिए अलग अलग गेम्स हुआ करती थी। लेकिन आज बच्चे सारे सीजन में एक ही गेम है, वो है कंप्यूटर। हमारे बहुत ही सम्माननीय शायर गुलजार जी ने एक बहुत सुंदर चीज लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे घर के सामने का मैदान आजकल खाली रहता है, शायद मोबाइल बच्चों की गेंद चुरा कर ले गया है। ये सच है कि मोबाइल बच्चों की गेंद ही नहीं, बच्चों का सारा बचपन चुरा के ले गया है। तो ये बहुत महत्व का है कि हमारी अगली पीढ़ी को अगर हमें स्वस्थ देखना है,
हमारी अगली पीढ़ी को हमें अगर प्रोग्रेसिव देखना है तो उन्हें खास करके बचपन से जो शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए खेलना चाहिए, धूप में खेलना चाहिए, रोज कम से कम 1 घंटा कुदरत के साथ ये बहुत ही जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो गया है, घर से कार, रिक्शा, ट्रेन, वहां से ऑफिस, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी एसी, माइक्रोवेव में डायरेक्टली हम फूड बनाते हैं और सतत हम लैपटॉप, इंटरनेट और मोबाइल के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार का जो जीना जो है, ये खास कर, मैं बाकी की बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं बता सकता हूँ कि कंटिन्यूस एयर कंडीशन में रहना और सांधों को नहीं हिलाने की वजह से जो माइक्रो सर्कुलेशन जो है, शरीर का जो ब्लड सप्लाई है, सांधे, जैसे मैंने भी एनाटॉमी में आपको समझाया कि जॉइंट का सरफेस जो एक कांच की भांति स्मूथ रहता है, एक कांच की भांति वह नाजुक रहता है। तो यह जॉइंट के सरफेस को जब माइक्रो सर्कुलेशन मिलने के लिए 2 चीज महत्व की है, कंटिन्यूस एक्टिविटी जिससे जॉइंट का परफ्यूलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन बना रहता है, और वार्म एनवायरनमेंट। ये दोनों चीज जब नहीं मिलती है, इसी का कारण है कि जगत भर में आर्थराइटिस के जो केसेस जो है वो बहुत ही मात्रा में जो है, बहुत ही डेंजरस मात्रा में। आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, रूमेटोलॉजिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बंबई की कोई भी हॉस्पिटल में आप जाइए, मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ये मल्टीपल जॉइंट पेन्स जो ये लाइफस्टाइल के वजह से, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जो जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस जो है, वो बहुत ही मात्रा में बढ़ रहा है। और इसके लिए पेरेंट्स के रूप में हर पेरेंट्स का ये जवाबदारी होता है, एक तो खुद में बदलाव लाएं और खुद के बदलाव के साथ एक उदाहरण रूप बनकर अपने बच्चों में भी, फ्यूचर के जो जनरेशन है उसके लिए भी स्वस्थ लाइफस्टाइल उनके में भी सिखाने की एक प्रेरणा उनको दे। यस सर, थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर और सच्ची बातें आपने बताई है। तो जैसे ये सारे गैजेट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू आवर माइंड, और ये जो मन है और मानसिक स्वास्थ्य है वो भी शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर शारीरिक आप शरीर से स्वस्थ है लेकिन मन से स्वस्थ नहीं है तो वो आपके जोड़ों को भी और पूरे शरीर को भी इफेक्ट करता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हम भावनाओं में बहकर अगर हम हमारे शरीर पे कहीं इमोशनल अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं। जैसे पेट बोल रहा है कि पकोड़े मत खा, लेकिन जीवा बोल रही है कि खा, मन बोल रहा है कि नहीं मुझे तो खाना ही है। तो ये अत्याचार ही होता है हमारे शरीर पे। तो ये जो हम सब देख रहे हैं कि जो मन पूरा अगर गैजेट्स में लगा हुआ है तो वो शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, और अलग अलग चीजें जैसे भय, क्रोध है, ये चीजें मन में उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप क्या है और ये कैसे असर करता है हमारे जोड़ों पे? मॉडर्न, ये बात सच है कि खास करके जो जॉइंट्स के जो बीमारियां हैं और उसके साथ और मन का संबंध अब मॉडर्न साइंस ने समझने की शुरुआत डेफिनेटली की है। रिसर्च भी हो रहे हैं और ये पता था कि जब हम मॉडर्न गैजेट्स के साथ ज़्यादा रहते हैं तब हम आर्टिफिशियल एक जीवन में हम जीने की एक उतर जाते हैं। सो कांस्टेंट हम मूवीज है, सीरियल्स है, शोज है, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स में, जिसमें हम आर्टिफिशियल जीने की एक हमारी एक जीवन शैली बन जाती है। और उसी के द्वारा, उसी के उस कंप्यूटर और मोबाइल और के द्वारा हम आर्टिफिशियल तरीके से भय, क्रोध, शोक, ये सारी चीजें हम अनुभव करते हैं। लेकिन सच में शरीर के साथ जब हम बाहरी दुनिया में जब आते हैं तब सारी वही चीजें हमें फेस करने की हमारी तैयारी नहीं रहती। डॉक्टर चित्तरंजन राणावत जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स के प्रपितामह माने जाते हैं, जिनकी पूरे विश्व में उनके एक एक शब्द हर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एक ब्रह्म वाक्य के समान वो लेते हैं। उन्होंने एक बार कहा था
कि मैं कभी भी मैं मूवीज देखता नहीं हूँ। मैं शॉक हो गया। ही इज प्रैक्टिसिंग इन न्यूयॉर्क और वो कहते हैं कि पिक्चर मूवीज में कभी भी नहीं देखता है, कि मूवीज मुझे आर्टिफिशियल इमोशंस मेरे लिए खड़ी करती है और मूवीज के द्वारा जो इमोशंस जो होता है, जो डर भय, वो सारा चीजें उस मूवी के द्वारा जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी डर, जो भी भय, जो भी चिंता, जो भी एक्साइटमेंट, जो भी शूरवीरता है, वो मेरे द्वारा मैं इस भौतिक जगत में मैं फेस करना चाहता हूँ। और इसी के लिए कड़ी से कड़ी कितनी सी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो है वो जब मैं करता हूँ तब मेरे जीवन में जो है एंजाइटी भी रहती है, एक्साइटमेंट भी रहता है और एक इलेशन और एक आनंद की भावना भी होती है। तो कहते हैं कि जीवन जो मैं उनसे ये सीखा हूँ कि हमारा जीवन हमें हमारे जीवन के हम हीरो रहना चाहिए। और एक फिल्म का, एक पिक्चर का, एक सीरियल का जो हीरो जो चीजों से हमें दिखाता है वो हमें हमारे जीवन के द्वारा एंड ऑफ द डे एक हीरो की तरह जो पिक्चर में हम देखना चाहते हैं, हमें हमारा जीवन जीना चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट भी हो, डर भी हो, आंसू भी हो, हृदय का टूटना भी हो। लेकिन जैसे हीरो जीतता है अंत में, हमें भी इस प्रकार से हमारा जीवन जीतना चाहिए कि हम भी हमारा जो जीवन जो है इस प्रकार से जिए कि हम भी एंड ऑफ द डे हम विनर रहें। शरीर के साथ, समाज के साथ हमें ऐसा छोड़कर जाना चाहिए, ऐसी चीजें छोड़कर जाना चाहिए ताकि लोग जो है हमें एक छोटा सा ही क्यों ना हो, हमारे भी जीवन में हम एक छोटे हीरो की तरह हम जी जाएं। जो स्क्रीन पर जो बड़ा हीरो दिखता है उससे अच्छा बेहतर ही सही हम छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन छोटे हीरो की तरह हम जी सके। यस सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो गया है और इसी तरह इसमें हमारे भावना या हमारे इमोशंस भी कहीं पे जाके आर्टिफिशियल होने लगी हैं। और इसलिए आजकल जैसे पेरेंट्स आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व ना देके एक्यू यानी एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे या इवन बड़े लोग भी हैं जो एडवर्स कंडीशंस में कैसे कोप अप कर पाते हैं, कैसे खुद को संभाल पाते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और ये सारी चीज़ें जैसे मन और शरीर से संबंधित है। अगर मन ये भी एक स्रोतस है, इट इज ऑल्सो माइक्रो चैनल इन अवर बॉडी। अगर मन में वात प्रकोप होता है तो वो शरीर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और वो वात प्रकोप शरीर में होके फिर अलग अलग व्याधि निर्माण होते हैं और जॉइंट्स, आर्थराइटिस, इसका जो पेन है वो और बढ़ जाता है। तो अब तक हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं, जैसे आहार है, विहार है, निद्रा है, लाइफस्टाइल है, डाइट है, योगा, एक्सरसाइज है, लेकिन इस सारे चीजों से हमारे जॉइंट के साथ कैसा संबंध है? तो अगर इसमें कुछ एलोपैथी में इसका वर्णन बताया गया है कहीं पे? आई थिंक डॉक्टर प्रियंका, ये जो माइंड बॉडी का तो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद में एलोपैथी से कई तरीके से, सूक्ष्म तरीके से समझाया गया है कि रिलेशन बिटवीन डाइट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और शरीर को जॉइंट्स के साथ क्या कनेक्शन है। तो मे भी आप थोड़ा सा आयुर्वेद की तरह से बता सकें। यस सर, आयुर्वेद शास्त्र में बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विश्लेषण दिया गया है। हर एक व्याधि का पैथोजेनेसिस, जिसे हम संप्राप्ति बोलते हैं, वो ग्रंथों में विस्तारित रूप से बताई गई है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है, माइंड एंड बॉडी ये दोनों में मिला के वात प्रकोप होता है, यानी जो हमारे शरीर में वात है, एयर है, वो विषेट हो जाती है। तो उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले मैंने जैसे बताया कि जैसे टॉक्सिन फॉर्मेशन होके वो शरीर में वात के साथ घूमता है और जाके जोड़ों के वहाँ पे संचित होने लगता है। क्योंकि जैसे डाइजेशन होता है, जो आहार का अन्नरस में फॉर्मेशन होता है, अगर वो अच्छी तरह से होता है तो शरीर में जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से बना रहता है और पोषण अच्छे से मिलता है। लेकिन अगर वो इनडाइजेशन है, अच्छे हाफ डाइजेस्टेड है, तो उसका पोषण भी ठीक से नहीं मिलता है और वहाँ पे होती है आम निर्मित, जैसे हम टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, और ये आम वात के साथ घूम के संचित होने लगता है। लेकिन ये जोड़ों में ही क्यों जाता है? क्योंकि जब अन्नरस पाचन होना शुरू होता है, वो डाइजेशन प्रक्रिया में
प्राकृत पित्त और प्राकृत कफ की भी निर्मित होती है। तो ये जो प्राकृत कफ है, जैसे हमने पहले ही देखा है, जो श्लेषक कफ निर्मित होती है, ये संधि जो है जॉइंट्स को पोषण देती है, लुब्रिकेशन देती है और उसको सांध के रखती है। ये वो वाला कफ नहीं है जैसे हम सर्दी खांसी वाला कफ बोलते हैं, ये वो कफ नहीं है। शरीर में जो 3 दोष है, वात पित्त और कफ, उसमें से ये कफ है। और दूसरा है बोन हेल्थ, जिसे हम अस्थि कहते हैं। अस्थि का जो आरोग्य है वो कैसे रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है तो वो डायरेक्टली अस्थि को इफेक्ट करता है, क्योंकि वात का आश्रय स्थान ही अस्थि बताया गया है। जहाँ पे बोन से वहां पे वात रहेगा ही। और अगर घर में ही कुछ बिगाड़ आ गया तो पहले घर खराब होने लगता है। वैसे ही अगर वात बढ़ गया है तो अस्थि क्षय यानी डिजनरेशन ऑफ द बोन शुरू हो जाता है। फिर ये सबके कारण, और जैसे स्लीप हैम्पर होता है तो फिर से वात बढ़ता है। और साइनोवियल फ्लूइड का रिडक्शन शुरू होता है। जो 2 हड्डियां एक के ऊपर घिसना शुरू हो जाती है, डिजनरेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर जकड़न, स्टिफनेस, झुंझुनाहट है, जैसे सांधे या फिर जॉइंट्स बेंड होने लगते हैं, अलग अलग डिफॉर्मिटीज होते हैं। ये सारे जो है वो वात प्रकोप के कारण होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में वात को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जिससे अपना जो वात है वो बैलेंस्ड अगर रखें तो सारी व्याधि दूर रहती है। इसलिए वात को हम विश्वकर्मा, महाजबा या फिर विष्णु भी बोलते हैं। वाग्भट आचार्य ने बहुत ही खूबसूरती से एक श्लोक में कहा है कि जैसे अगर पूरे शरीर में और पूरे विश्व में भी कुछ शुभ और अशुभ घटनाएं घटती है तो उसका कारण होता है प्राकृतवात या विकृतवात। शुभ चीजें घटती है तो प्राकृतवात है, और अगर अशुभ है तो विकृतवात है। तो हम कोरोना के ये पैंडेमिक में देख सकते हैं कि ये सब जो चीजें हैं वो कहीं पे ये विकृतवात से रिलेटेड है। तो जैसे पहले वात विकृत होता है और फिर वो पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जल, स्थल, काल, देश ये सब जो है दूषित होने लगते हैं। इसलिए मेरी एक ही सलाह रहेगी कि अपना जो वात है वो अच्छे से बैलेंस्ड रखें। तो सर, एलोपैथी में और आपके ये जो प्रदीर्घ अनुभव है, 30 साल का प्रदीर्घ अनुभव और इतने सारे मरीजों को जांचने के बाद, आप क्या बता सकते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, इसमें क्या चिकित्सा है और रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं? एलोपैथी में जब पेशेंट आते हैं जॉइंट रिलेटेड, तो 60% ऑफ मेरा जो टाइम है, मेरा कंसल्टेशन टाइम होता है, वो जाता है लाइफस्टाइल चेंज करने में। 60% विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट को जो मदद रूप होने वाला है। और फॉर शॉर्ट टर्म के लिए हम पेशेंट को एलोपैथी में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, लोकल हीट एंड ऑइंटमेंट्स देते हैं, एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो जिस झड़प से, जिस गति से मनुष्य जी रहा है अपना जीवन, उनके पास समय नहीं रहता है। आपका भी अनुभव होगा कि सर जो भी कुछ है मुझे ठीक कर दो, और इन बिटवीन द लाइन होता है मुझे जल्दी ठीक कर दो। लाइफ साहब मुझे मत बताओ, चट मंगनी पट ब्याह। सो दैट इज sad part. As a orthopedic surgeon, prevention, I am telling you, is always better than cure. But yes, allopathy में definitely there are multiple anti-inflammatory, muscle relaxant medicines जो है, जिसकी साइड इफेक्ट अगर बराबर अच्छी तरह से ली डॉक्टर के गाइडेंस के नीचे तो वो काफ़ी मदद हो जाती है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। लंबे प्रकार की जो बीमारियां होती है उसमें कई बार हम इंजेक्शंस भी देते हैं, कई बार हम अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस भी हम देते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत महत्व का अंग है ऑर्थोपेडिक्स में। और जॉइंट डिफॉर्मिटीज, यह एक जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, इट इज इन सच स्थिति में अगर मैं बताऊं तो खास करके घुटने इतने खराब हो जाते हैं कि आदमी चल नहीं सकता है, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए, खास करके ऐसे पेशेंट के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट यह एक बहुत ही वरदान है।
मॉडर्न साइंस का ये वरदान है। और मैं खुद में देखता हूँ कि जो पेशेंट बाथरूम तक नहीं जा सकता है वो चल के अपने खुद एक्टिविटी जैसे बाजार जाना, बाहर जाना, सारा चीजें कर सकता है। तो ये है एक क्यूरेटिव पार्ट कि पेशेंट का एडवांस स्टेज में। तो यहीं पर मैं कहता हूं कि आयुर्वेद एंड एलोपैथी जो संगम जो है वो मैं यहां देखना चाहता हूं कि जहां पर बीमारी इतनी एडवांस हो चुकी है वहां पर हम आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन डाल के या जॉइंट रिप्लेसमेंट करके या स्पाइन में सर्जरी करके स्टेबलाइज करके हम पेशेंट का जो मैकेनिकल जो प्रॉब्लम एडवांस स्टेज पर हो चुका है उससे पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम वापस देने की कोशिश करें। बहुत ही सीवियर स्टेज दर्द होता है तो पेन की मेडिसिन भी डेफिनेटली पेशेंट को हेल्प होती है। लेकिन एक जो चीज जो हम मॉडर्न नजरअंदाज करती है वह है प्रिवेंशन। किस प्रकार से हम ये स्टेज तक ना आए जहां पर हमें सीरियस मेडिसिन लंबे अरसे तक ले, उसका डर रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत लंबे तक अगर कोई भी चीज आप करो तो उसका साइड इफेक्ट होता ही है, वो मॉडर्न मेडिसिन होती है। तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए यह उसके ऊपर ध्यान जो दे रहा है वो शायद आप आयुर्वेद के द्वारा हमें कुछ उसके ऊपर लाइट डाल सकते हैं कि ऐसी कैसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज है जिसमें अर्ली स्टेज में पेशेंट को जॉइंट रिलेटेड बीमारी से हम वापस लेके आ सकते हैं। ये सर, तो इसमें जो हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद में अगर आपको कोई व्याधि प्रिवेंट करना है तो पहली बात आती है कि एक दिनचर्या फॉलो करना, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना। और जो आयुर्वेद में दिनचर्या दी गई है अगर उसे फॉलो कर सकते हैं तो वो बहुत सबसे अच्छी बात हो सकती है। तो उसमें जैसे फर्स्ट थिंग आई कैन से लंघन। तो लंघन जो है वो हम आजकल के डाइट को हम नहीं रिलेट कर सकते। वो डाइट कीटो डाइट अलग है और ये जो लंघन डाइट है वो अलग है। इसे हम कम खाना या फिर लघु आहार लेना जो डाइजेशन के लिए अच्छा हो, जल्दी से जिसका डाइजेशन हो जाता है। दूसरा है स्वेदन। स्वेदन यानी अलग अलग टाइप के फोमेंटेशन है, हीट एप्लीकेशन है। तो उसमें जैसे अगर रोमेटिज्म है, आम बात है, तो वहाँ पे हम लोग वालुका पोटली का स्वेद देते हैं। जैसे सैंड है, रेत का जो स्वेद है वो देते हैं, या फिर हॉट वाटर बैग है, हॉट वाटर के साथ है वो स्वेद देते हैं। अलग अलग वनस्पति है जैसे एरंड पत्र है, निर्गुंडी पत्र है, इसके भी हम स्वेद देते हैं। पहले के जमाने के लोगों को ये सब जो है नेचुरल रेमेडीज है, छोटे छोटे जैसे एरंड पत्र है, निर्गुंडी है या फिर एलोवेरा है, इनके यूजेस पता थे। लेकिन आजकल ये जनरेशन में ये जो बातें हैं जो हम कॉमन सेंस में बोल सकते हैं कि ये पता होनी चाहिए, वो नहीं पता है। क्योंकि जो ये लोग हैं इससे आयुर्वेद से नेचुरल लिविंग से दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए और तीसरी थिंग है दीपन। अपना अग्नि जो है अच्छे से बनाए रखना है, इसीलिए कुछ मेडिसिन होती है और वैसा डाइट भी होता है। और कुछ पंचकर्म भी हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे ओलिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल है, और डिफरेंट मेडिकेटेड घृत है, घी है, फिर बस्ती है दैट इज एनेमा। तो उसमें अलग अलग हम डिकॉक्शन और ऑयल्स का एनेमा देते हैं। उससे जो है बात बैलेंस होने में मदद होती है। अलग अलग लेप हैं, वहाँ पे अलग अलग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सम मेडिसिन है इन द फॉर्म ऑफ लेप, वो करते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है सूजन कम होती है, जकड़न कम होती है, और उसमें थोड़ी जॉइंट्स में ताकत मिलती है। और जैसे हम बोलते हैं कि आजकल इंस्टेंट मैगी के ज़माने में लोगों को इंस्टेंट पेन रिलीफ भी चाहिए। आपने जैसे बोला कि तुरंत जल्दी उनको रिलीफ चाहिए, तो ऐसा तो जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टेंट पेन रिलीफ देती हैं। तो उसमें है अग्निकर्म और विद्धकर्म। अग्निकर्म यानी जो है उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग शलाका होती है, आयन, अलग अलग रॉड्स होते हैं मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स लाइक आयन, कॉपर एंड गोल्ड ऑल्सो। तो उसको हीट करके हम वो पर्टिकुलर पेन पॉइंट पे अग्नि देते हैं, यानी हीट एप्लीकेशन करते हैं, तो वो इंस्टेंट पेन रिलीफ देता है। और सेकेंड थिंग इज लीच थेरेपी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थेरेपी, और वो बहुत अच्छी तरह से पेशेंट्स को हेल्प करती है। वो जकड़न कम करती है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको दूर करती है, तो इन्फ्लामेशन कम होता है। और ऑल्सो जैसे लीच के सलाइम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छे से मदद करते हैं।
और पंचकर्म में जैसे हम देखते हैं कि अभ्यंग ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं कि इसे हम बस्ती कहते हैं। जैसे घुटनों पे तेल ज्यादा देर तक रखने के लिए उसमें हम जैसे आटे का घोल बना के वहाँ पे रखते हैं, तो इसकी हीलिंग होता है जॉइंट्स का। और जो जॉइंट्स अच्छे तरह से काम कर पाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में देखा ही है, लेकिन अभ्यंग जो है वो आयुर्वेद शास्त्र में है, दिनचर्या में बोला है कि एवरी डे यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे ही वो अभ्यंग करना है, लेकिन हर दिन आपको आपके शरीर को तेल लगाना चाहिए। इसको हम स्नेहन बोलते हैं। स्नेह यानी जो स्निग्ध पदार्थ है जैसे घी और तेल, और अगर इसको हम हमारे शरीर पे लगाते हैं तो शरीर में बढ़ा हुआ वात कम होता है, त्वचा अच्छी होती है, जॉइंट्स में अच्छे होते हैं। और उसके साथ में जो मन में जो रुक्षता आई है और ड्राइनेस है उसको भी स्नेहन मिलता है। जो स्पर्श मिलता है उसमें उससे भी एक हीलिंग होता है। तो मन की रुक्षता भी दूर होती है और शरीर की रुक्षता भी दूर होती है। इसीलिए अभ्यंग हर दिन सबने करना चाहिए। वेरी नाइस। 10 मिनट अभ्यंग करके फिर नहाना चाहिए। और इसलिए और उसके साथ ही डाइट मेंटेन करना है। जैसे डाइट में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अगर बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ तो ईट लोकल एंड सीजनल। जो भी लोकल है, लोकली ग्रो होता है, और सीजनल फ्रूट सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जो इम्पोर्टेड है एक्सोटिक वेजिटेबल्स, जुकीनी, बेल पेपर्स एंड कॉर्न्स, ये जो है ये खाने की मुझे जरूरत नहीं लगती है उसकी वजह से, बिकॉज ये हमें साथ में नहीं है। ये चीजें हमारे शरीर में साथ में नहीं है और वो व्याधि उत्पन्न करती है। तो जैसे ये सब डाइट और लाइफस्टाइल का हो गया। तो सर आप एक खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिर भी आपका प्राणायाम योग इसमें बहुत ही प्रगाढ़ विश्वास है। तो इसका जो आपका क्या अनुभव है? ऐसे थोड़ा सा अगर कहना चाहूँ तो कम से कम 4 साल पहले मैं मेरी बिटिया के साथ, बिटिया जो मेरी योगा थेरापिस्ट है सुरभि, वह योगा थेरापी का एक पहलू सीखने के लिए हिमालय में गई थी, और बिटिया को अकेले ना नहीं भेजा सकता है 1 महीने तक, तो मैं उसके साथ में गया था, मैं भी एनरोल कर दिया था। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि कितना वैज्ञानिक तरीके से यह जो योग विद्या का जो साइंस जो है, जिससे मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो मॉडर्न मेडिसिन जो है जो वंचित रहा है। खास करके मैं कहूँगा कि हम ज़्यादा ध्यान शरीर में हम मसल्स को डेवलप करने में लगाते हैं, जिम्नेशियम और हर जगह पर, जिसमें मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन हम टिश्यू स्ट्रेचिंग पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसके पर विश्व भर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहा है कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेचिंग करके शरीर को क्या फायदा मिलता है। एक हिस्सा योगा का जो हिस्सा है योग का, दूसरा हिस्सा है कि अलग अलग हमारे ऑपोजिंग मसल्स को, स्नायुओं को कैसे अलग अलग एक्सरसाइज के द्वारा, जैसे स्पाइन का फ्लेक्शन, स्पाइन का एक्सटेंशन, इसके द्वारा मसल्स को बैलेंसिंग एक्सरसाइज कैसे दी जाती है, ये योगा के द्वारा सिखाया जाता है। 2 चीज, पहला जो मैंने कहा है वो टिश्यू स्ट्रेचिंग, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू के लिए जो महत्व का जो हिस्सा जो दिया गया है वो, एंड तीसरा जो सबसे महत्व का जो मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज एंड योगा के साथ जो जुड़ा हुआ है, और वह है प्राणायाम। भर में अलग अलग बड़ी बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में माइक्रो सर्कुलेशन पर रिसर्च हो रहा है। बीमारियों, खास करके जॉइंट के, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं कहूँगा तो सारे जॉइंट्स में जो आर्थराइटिस जो होता है उसका एकमेव कारण वो है कि माइक्रो सर्कुलेशन, सूक्ष्म रक्त प्रवाह जॉइंट तक, बोन्स तक नहीं पहुंचता है। इसी के वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसी के वजह से आर्थराइटिस होता है।
लेकिन प्राणायाम के द्वारा जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब करते हैं, आदमी मॉडर्न लाइफस्टाइल में के वजह से आदमी कुदरत ने इतनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन हमें दिया है, प्राण वायु जो दिया है, वह उसे कैसे वापरना हम भूल चुके हैं। और उसी की वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के द्वारा हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंचता है, और उसी के वजह से जो है अलग अलग, खास करके जॉइंट्स के बारे में बोलूं तो आर्थराइटिस का ये डेवलपमेंट होता है। तो प्राणायाम के द्वारा लंग्स को फुल कैपेसिटी में वापर कर ऑक्सीजन शरीर के अलग अलग जॉइंट्स और सांधों और बाकी के ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। उतना ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में भरा रहता है, उसे हम प्राणायाम के द्वारा या लंग्स के द्वारा हम शरीर पर बाहर फेंकने का भी भूल गए हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जब जमा होता है तो मानसिक शारीरिक तौर पर अलग अलग प्रकार की सटल से लेकर बाद में ग्रॉस लेवल तक बीमारियां खड़ा करता है। तो प्राणायाम के द्वारा हम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से हम फेंकते हैं। और यही कारण है उसके साथ में जब हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज योगा की करते हैं, अच्छी तरह से हम जब प्राणायाम करते हैं, तब इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल लेवल हेल्थ एट द सटल लेवल, एट द सेम टाइम एट द ग्रॉस लेवल पर हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। जैसे अगर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन इस पे विश्वास करते हैं और जब इसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों का भी विश्वास इसमें बढ़ जाता है और उसको फॉलो करने की एक इंस्पिरेशन भी लोगों को मिलती है। तो जैसे आपने बोला कि एक जो मदर नेचर है, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे हीलिंग में। जैसे प्राणायाम है, जो शरीर के अंदर का प्राण है, उसका पोषण जो निसर्ग में प्राण मौजूद है, प्राणवायु के रूप में वो करता है। तो वैसे ही वो प्राण, उसका आयाम हम करते हैं तो वो है प्राणायाम। तो ये जो प्राणायाम और योगा है, उस अगर निसर्गतः यानी नेचर के साथ में रह के, नेचर के क्लोज रह के करें तो उसका और ज्यादा बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो इसमें जो है अभी कोरोना की जो स्थिति आई है, उसकी वजह से लोग जो योगासन और प्राणायाम की तरफ झुक रहे हैं और उसका इम्पोर्टेंस लोगों को अभी पता चल रहा है। So what you feel, what is the role of Mother Nature in healing? Mother Nature is the only healer. कंसल्टिंग चार्जेस हम लेते हैं। Very true. What we do, see, simple thing, अगर फ्रैक्चर होता है तो हम प्लेट डालते हैं। हीलिंग जो होता है, हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर इज डज बाय द मदर नेचर। So healing is, mother nature is a healer. Allopathy, Ayurveda, homeopathy, all these जो medical fraternities है, we can be assistant to mother nature. हम कुदरत को हम एक असिस्टेंट के रूप में हो सकते हैं। और जब हम कुदरत का हीलिंग में महत्व हम समझ पाएंगे, जब मदर नेचर का महत्व हम सर्वोत्तम हम रखेंगे, तब मनुष्य के शरीर की, मन की, भावना की बीमारियों को सच तरह कर समझकर हम उसे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दिशा में हम सच्चा हम प्रयास कर सकेंगे। नहीं तो हम शॉर्ट टर्म विजन के साथ हम काम करेंगे। लेकिन ये हमेशा हमें जानना पड़ेगा कि कोई भी चीज अगर हमें पानी है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जब हम निसर्ग के साथ नैसर्गिक तरह से, निसर्ग का मतलब है नैसर्गिक, तो निसर्ग के अनुरूप हम जब जीते हैं, जो सात्विक लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं, जब निसर्ग के अनुरूप हम सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं और फिर उसके साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप, ये सब अंगों के द्वारा हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा, हम योगा के द्वारा, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब डेफिनेटली एटलीस्ट एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं कह सकता हूँ कि जॉइंट रिलेटेड बीमारियों से आप डेफिनेटली, आप एज, उम्र में आप बढ़ोगे, लेकिन एजिंग जो है
उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये जो कोरोना में हम लोग आजकल जो स्थिति देख रहे हैं, इसके वजह से जो लोग हैं अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। तो आज तक सब लोग जो इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ करते थे, लेकिन आज से अगर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ शुरू करना है, तो पहली बात है कि मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे आयुर्वेद को एक जस्ट जड़ी बूटी साइंस या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन ना रखें, लेकिन उसको अपने दिनचर्या का एक भाग बनाएं। अगर ऐसे करेंगे तो प्रिवेंशन, हम किसी भी व्याधि का प्रिवेंशन कर पाएंगे। और स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ, लाइक यू सेड वेरी वेल। क्योंकि लोग आजकल पैसा कमाने के पीछे देर रात तक जागते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं, और दूर दूर तक ट्रैवलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ों से उनका हेल्थ कम होते जा रहा है। और जब जो वेल्थ वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो आगे जाके बुढ़ापे में पूरा हेल्थ पे ही खर्च होने वाली है। और अगर ऐसा नहीं करना है तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। और जो है, लिव इन योर प्रेजेंट। जैसे अभी हम लोग सोचते हैं, अगर मैं कोरोना में, क्योंकि मैंने कहीं छू तो नहीं लिया, तो ये इसका हम बहुत ध्यान रखते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छू रहे हैं, सांस कैसे ले रहे हैं। तो यानी द पीपल आर स्टार्टेड लिविंग इन देयर प्रेजेंट, stop worrying about their past and worrying about their future. So it is very important. And नेचुरल ग्रोइंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये जो है, जो ग्रोइंग योर ओन फूड, इट गिव्स यू ब्लिस एंड हैप्पीनेस। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? I think we can have a separate session on this. It's Yes, very important also. we will have some coming session on this particular topic. Grow what you eat. Thank you so much, sir. I wish you all a healthy life ahead. Meet you next time. Thank you. Thank you, Dr. Kumar. Thank you all. Thank you, Doctor. Let us see if there are any questions coming from the audience. Audience, do you all have any questions from our speakers? हेलो। आपने जो बोला कि items different malnutrition which can be avoided by eating food. Sorry, sir, your question is not audible. Can you please repeat your question? Certainly. डॉक्टर प्रियंका मैडम ने बोला था कि हम परस्पर विसंगत जो अन्न है लेने, उन्होंने उदाहरण दिया था कि गुलाब जामुन आइसक्रीम में डाल के ऐसा कुछ। हाँ हाँ, बोलिए। और ऐसा कि क्या से परस्पर विरोधी अन्न है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। Hello, can you repeat your question because there is some disturbance in your voice. Certainly. विसंगत, परस्पर विसंगत, मतलब मैंने गिराज ने बोला था कि जंक फूड खाते हैं या पैक फूड खाते हैं, तो आपको ऐसा लगता था कि परस्पर विसंगत या कॉन्ट्राडिक्टरी फूड वी शुड नॉट ईट दैट। So, can we know which are the items and which are the right balanced food? Shall I repeat? Yes. Last line, please. Can you repeat? Sure, sir. No, voice is not clear. I can't hear you. Sorry. Raghuji, can you type it and send it in the chat box? Present. Dr. Sachin Palaskar had some question. Hare Krishna, am I audible? Yes, very much.
Hare Krishna sir, actually क्या है as a practicing doctor also, and even in some relatives, they have this problem of arthritis, and they don't want to take Ayurveda because maybe many reasons like they can't follow pathyas, and sometimes medicines are either costly or in multiple numbers, and at the same time they don't want to go for any surgery like knee replacement or so. So is there any midway like in allopathy itself, which will solve this problem of arthritis, especially knee pain, and at the same time they don't need to go for surgery or Ayurvedic treatment, which may be little tedious for at this age with very less support from family. Sir, would you like to say something? Yeah, I'll speak from the allopathy point of view, then you can speak from the Ayurveda point of view. The important thing, Dr. Palaskar, is yes, first thing is that the inhibition in the mind should be taken care of as a doctor amongst our family members at least. That joint replacement is not a bad surgery, or allopathy medicines are not bad. But at the same time, Ayurveda is also, at least I know that many practitioners are there where it's not so costly. But what is important ultimately from our talk is that prevention, sattvic lifestyle, exercise, sunlight, diet, and additional support through either allopathy, homeopathy, or Ayurveda. That is what is important. We cannot do anything and help that there will be a miracle. Many times patients come and to me and they need a one particular type of allopathy treatment like knee replacement, and they sir अभी ट्राई कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो नी रिप्लेसमेंट लगेगा ही, एंड दे आर सर कुछ तो करिए, कुछ और कोई ऑप्शन है कि नहीं. सो आई टेल देम है, एक ऑप्शन है, मेरे पास एक जादुई छड़ी है, वो जादुई छड़ी में हिलाऊंगा, आपका नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो लेके गया है, वो अभी तक लाया नहीं, जिस दिन वो लाएगा मैं आपको ठीक कर दूंगा. So the important thing is that we have to, as a patient, have to get involved actively in the part of the treatment. Patient is the most important part. Neither just Ayurveda nor just allopathy can do anything unless and until patient is ready to get involved. Most important percentage, 60% of a disease cure is done through the patient himself by changing the lifestyle and changing the habits of causative factors are removed from the patient's lifestyle. Automatically 60% of the cure is there in patient's own hand. Dr. Priyanka, anything? Yes, sir. Thank you, Dr. Palaskar, for your question. It is really a practical question. जैसे सर ने बोला, ये तो पेशेंस इज द बेसिक नीड, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से कि दीज आर रियली प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कि पेशेंट को बहुत सारे चूर्ण पाउडर खाने की आदत नहीं होती है, या फिर वो कड़वे रहते हैं तो वो खाना नहीं चाहते, और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है. इसलिए वी आर रियली ट्राइंग कि जैसे थोड़ा पेशेंट्स को ईजी रहे. वी आर कन्वर्टिंग चूर्ण इनटू द टैबलेट्स, वी आर कन्वर्टिंग डिफरेंट ऑयल्स which are to be taken orally into the capsules, so that it will be easy for the patients to take it. And also pathya diet is very important, but at the same time in this modern age we all Ayurvedic doctors are trying to give you the delicious pathya, the pathya also, and which can you take you can make it in a very delicious way, easy way, and you can have it frequently like that. तो ये सारी चीजें हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे हेल्थ बनाना मेहनत की बात है, तो उसमें आपको मेहनत थोड़ी करनी ही पड़ेगी, खुद का डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा. एंड वन थिंग आई विल से दैट कि पे अटेंशन टू द सिग्नल्स दैट योर बॉडी इज गिविंग.
अगर सिग्नल ऐसे Yes. कुछ बॉडी की तरफ से मिल रहे हैं, उसको आप पहले से ही देखेंगे तो आप प्रिवेंट कर पाओगे, rather than going further stage, और आगे बढ़ने से पहले उसे आप काबू कर पाओगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर पास्कर. Thank you very much, Dr. Girish sir and Dr. Priyanka. One last question from my side. What is the limit? Like in OPD also, we get some patients who want painkiller, like who need painkiller rather, we say. So, what is the frequency? Like this much we can give, and it will not affect your kidney. So, is there some limit or some frequency, like once in a week or once in a day or something like that? This much you can give for healthy person, and it won't affect his kidney, even if he takes for months together or so. Yeah, thank you, Dr. Palaskar. This is a very, very important question because many times patients go away with a prescription. They come after 6 months, 1 year, and they have continued those medicines even though we have written it for 10 days or 15 days. So from the modern science point of view, if the medicines are taken properly under the guidance of a doctor who is conscious and aware about the side effects of medicine, what he is giving, then there is very, very minimal or practically no chance the patient will have a side effects like a renal failure and other things. At the same time, as a practitioner, I generally, if you see my prescription, I will have only one anti-inflammatory medicine in my prescription. Maximum one anti-inflammatory, one antacid, and one supportive medicines like vitamins or calcium. So that should be the motto as a prescription writer consultant, that painkiller should be given, but it should be given judiciously. As far as time is concerned, when patient is a very, very chronic patient, elderly patient, diabetes is there, blood pressure is there, in such patients, we have to shift over. If patient is cured with certain medicines, then fine. But then gradually, with a time span around say 3 weeks, 4 weeks down the line, you have to shift over to those medicines like those are less or no, not harmful to the kidney, like Ultracet, Tramadol, or the paracetamol. These are the medicines. We have to be cautious and aware about the medicines which can cause side effects. And there are many medicines which can cause no side effects also. But of course, any medicines which is taken without the consultation of a doctor will have some or other side effects. That's true in any other medical practice. Even in Ayurveda medicine, Dr. Priyanka will say, agree that certain medicines they take for years and then they can have its own side effect. So as a consultant, you should give certain pain medicines up to say 3-4 weeks, see how patient is improving. Once my patient says that my pain is relieved by 60% or so, I reduce that medicine by half. Then I change the medicines to a lesser group. And then gradually I shift patient to the physiotherapy and exercises. So any medicines, we should be judiciously, we should be giving. That is fact. We cannot just go on writing any medicines. Thank you very much. Thank you very much. Hello. Yes, Yes, go ahead with Mataji, your go. question. Yeah, actually, sorry. Thank you for the wonderful session. Sorry, I got disconnected in between, so I'm not aware if you have spoken about role of hereditary in arthritis. Like I have seen some examples wherein mother had and her all 5 daughters had and their children have. So does arthritis pass on through hereditary? And is there anything that can be done to prevent this from happening and spreading like this over generations? Does Ayurveda or allopathy provide any help with this? Dr. Priyanka, would you like to answer? Then I can speak. Yes, sir. Thank you for the beautiful question. Actually, yes, we can prevent it
सो आयुर्वेद में जैसे कुछ बोला गया है, जैसे प्री कंसेप्शनल कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसे हम गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। तो प्री कंसेप्शनली हम उसमें कोई शोधन प्रक्रिया, प्यूरिफिकेशन और पंचकर्मा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से जो बीज दोष है, जेनेटिक फैक्टर्स है, वो उसका बीज शुद्धि होने में मदद होती है। और वो जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो आगे पास होने में ना पास नहीं होते हैं, या फिर उसका जो फ्रिक्वेंसी वो कम होने में हम लोग मदद करते हैं। तो वो बीज शुद्धि और शरीर शुद्धि प्री कंसेप्शनली सब लोगों ने करनी चाहिए। तो एक ये उसमें बात है। और दूसरी बात है, जैसे मासानुमास डेवलपमेंट, जैसे कंसीव होने के बाद जो एक फीटस रहता है, उसमें जो हर महीने में जो उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे तीसरे मंथ के बाद हम लोग अगर कुछ दवाइयाँ शुरू कर दें, तो वो उसके अस्थि धातु पे काम करती है, और ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट्स नहीं आते हैं, और अच्छी अस्तु धातु निर्मित होने में वो बच्चे में मदद होती है। तो ये दो फैक्टर्स हम लोग कर सकते हैं, एक है गर्भाधान संस्कार, और ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार, ड्यूरिंग दिस कंसेप्शन पीरियड, एंड सम मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन विद इन दैट। Wonderful. That was a completely new thing for me. Thank you, Dr. Priyanka. From allopathy point of view, yes, it is a very important question, that the hereditary does play a role, especially in certain diseases like rheumatism. This has been seen. At the same time, the genes we cannot change. You know, I have seen patients, same mother, all the 3-4 children, they are positive, RA positive, but in one or two it is very severe, other two it is severe in the blood, but clinically they are absolutely normal. So this is where the lifestyle plays a very important role. Even if there is a same mother, if you have an appropriate lifestyle, appropriate exercises, and timely needful intervention through allopathy, homeopathy, or the Ayurveda, then that particular group of children will definitely have less severe symptoms in their life. And if they start this thing at the early stage of the life, then definitely this hereditary role cannot be removed, but it can be minimized to the large extent in a person's life. Thank you. Thank you so much. Thank you, Doctor. Any more questions? Any questions coming from the audience? We would like to talk about the special COVID services that we have started, which is the online video consultation. People are little still hesitant to come to the hospitals. So we would request all of them to pass on the word that all our team is available for online video consultation. All that they have to do is either call up on the numbers or visit our website, where the detailed steps are mentioned, how to go about the video consultation and who are the doctors available for video consult. We request our audience to pass on the word to all their contacts so people can benefit from this online video consultation services. We also request our participants to kindly share their feedback form, which has been shared. Click onto the link and share your valuable inputs. And I think since we don't have any more questions, we can end the session. Dr. Rathod and Dr. Priyanka, I humbly thank you both for this wonderful, enlightening session. Since this session is also live on the Facebook and YouTube, people will definitely benefit from this session. Thank you. Thank you very much. Excuse. Yes. Yes. Dr. Rathod is available online from what time to what time?
Hello. Yes, ma'am. For that, you can just visit our website, that is www.bhaktivedantahospital.com. In Okay. that, we have that online appointment section where all Okay. the appointment slots for the video consultation doctors are available. So you can go and check over there and you can directly book an appointment for online consultation. Okay. You have to just visit our website and each and everything is over there. Okay, or else you can call at our receptions also. They will give you the appointment for him. Okay. Okay. Yeah, thank you. Mataji, I will send you the details in the WhatsApp to you. I'll forward those details. Okay. I have to forward to somebody. No, That's- I will, yeah. So I will share those details with you. You can definitely forward it on the WhatsApp to your contact. Okay. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.